मैं पढ़ता हूँ संस्कृत। षट्कर्म निपुनो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णवो गुरुर्न स्याद् वैष्णवा स्वपचो गुरु। अभी हम वही 8th श्लोक का ही परपट पढ़ रहे हैं। उसी के अंदर एक ये श्लोक आया है जो मैंने अभी रीड किया है। इसका नीचे कौन पढ़ेगा इंग्लिश में? कोई वॉलंटियर? हाँ जी, पढ़ो। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो आप। A scholarly Brahmana, expert in all subjects of Vedic knowledge, is unfit to become a spiritual master without being a Vaishnava or expert in the science of Krishna consciousness. But a person born in a family of a lower caste can become a spiritual master if he is a Vaishnava or Krishna conscious. Padma Purana. The problems of material existence. ओके एक सेकेंड। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? कई बार हम कहते हैं ये ब्राह्मण जी हैं, ब्राह्मण जी आए हैं। अच्छा, वो ब्राह्मण जी साथ में तंबाकू खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, उनके खुद की ये नहीं पता कि क्या लाइफस्टाइल है, ठीक है, और उसको ज्ञान है, नॉलेज है, मंत्र पढ़ेगा, तंत्र पढ़ेगा, ये सब करेगा भगवत गीता की। बट एक्चुअली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं कि स्कॉलरली ब्राह्मण हो, एक्सपर्ट हो वो सारे वैदिक उसमें। कई लोग कहते हैं अरे मुझे पूरी भगवत गीता कंठस्थ है, याद है पूरी की सब के सब श्लोका। वो तो तोता भी रट लेता है। अगर रटने की बात हो तो तोता भी रट लेता है, वो सबसे बड़ा गुरु हो गया। लेकिन उसको कैसे समझना है, कैसे आगे चलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो ट्रेनिंग होती है, वो पूरी साइंस है। जस्ट किसी को संस्कृत आ गया जाए या कोई श्लोका याद कर ले या कोई बोल ले मंत्र, वो लर्नेड नहीं हो जाता। लर्नेड मतलब कि वो क्या एक्शंस कर रहा है, कैसे समझ रहा है, कैसे उस चीज़ को अपनी लाइफ में चलाने की कोशिश कर रहा है, उसका ज्ञान मैच कर रहा है भगवत गीता के ज्ञान से कि नहीं, जो भगवत गीता ने बोला। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही लो जगह से भी बिलोंग करता हो, वो भी अगर अच्छी ट्रेनिंग उसको मिले और उसकी क्वालिटीज़ अच्छी हो जाए तो वो गुरु बन सकता है। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण भी है लेकिन वो ठीक और उसको याद भी है, सब कुछ स्क्रिप्चर्स वगैरह आते हैं, मगर उसको ज्ञान नहीं है कृष्ण तत्व का, उसको कैसे अप्लाई करना है, तो वो बेचारा गुरु बन नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़े। The problem of material existence, birth, old age, disease, and death cannot be counteracted by accumulation of wealth and economic development. In many parts of the world, there are states which are replete with all the facilities of life, which are full of wealth and economically developed. Yet, the problems of material existence are still present. They're seeking peace in different ways, but they can achieve real happiness only if they consult Krishna or the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, which constitute the signs of Krishna, through the bona fide representative of Krishna, the man in Krishna consciousness. If economic development and material comforts could drive away one's lamentations for family, social, national, or international inebrities, then Arjuna would not have said that even an unrivaled kingdom on earth or supremacy like that of the demigods in the heavenly planets would be unable to dry away his lamentations. He sought, therefore, refuge in Krishna consciousness, and that is the right path for peace and harmony. Economic development or supremacy over the world can be finished at any moment by the cataclysms of material nature. Even elevation into a higher planetary situation, as men are now seeking on the moon planet, can also be finished at one stroke. The Bhagavad Gita confirms this,
Sine punye mate lokam visanti. When the results of pious activities are finished, one falls down again from the peak of happiness to the lowest stages of life. Many politicians of the world have fallen down in that way. Such downfalls only constitute more causes for lamentation. Therefore, if we want to curb lamentation for good, then we have to take shelter of Krishna, as Arjuna is seeking to do. So Arjuna asked Krishna to solve his problem definitely, and that is the way of Krishna consciousness. Excellent. Hare Thank Krishna. you. हरे कृष्णा. आवाज आ रही मेरी? हाँ जी. तो यहाँ पे लास्ट के 3 पैराग्राफ पढ़े हमने. पहले में तो ये है कि बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमने अपनी पूरे सेमिनार में, जो इससे पहले भगवत गीता से पहले हमने एक सेमिनार किया था, उसमें भी डिस्कस करी थी कि 4 तरीके की प्रॉब्लम्स: जन्म, मृत्यु, ज्वरा, व्याधि, दुख, दोषानु, दर्शन. ठीक है ना? आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्यमेतद् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाधिको विशेषो धर्मे नहि न पशुभिः समानः. आहार, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, ये 4 चीजें हम करते रहते हैं. और अगर हम इसी पे रहेंगे तो हम जानवरों की जिंदगी जिएंगे, क्योंकि जानवर भी वैसे ही हैं. लेकिन अगर हम इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी को ऐड करें अपनी लाइफ में, तो हम जानवरों से ऊपर हो जाएंगे. और जब हम जानवरों से ऊपर होंगे, ह्यूमन फॉर्म में आएंगे और समझेंगे कि क्या करना है, तो जन्म, मृत्यु, ज्वरा, व्याधि इससे उठ जाएंगे. बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज और डेथ. तो ये सब प्रॉब्लम्स बहुत सीरियस है और भगवत गीता और भागवतम क्लियर कट आइडिया देता है. अभी क्या है, लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चक्कर में ज़्यादा फोकस करते हैं कि और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो बेटर हो जाएगा हमारी लाइफ, और इकोनॉमिक होगी, उसी के अंदर 10, 20, 30, 40, 50, 60 पूरी लाइफ निकल जाती है. लेकिन कई ऐसी जगहें हैं जो ज़्यादा, जहाँ पे लोग बहुत रिच हैं. जो आप इंडिया में सोच रहे हो कि इंडिया 10, 20, 30, 40, 50 साल बाद बनेगा, वो लोग ऑलरेडी बन चुके हैं. लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो गई. तो क्योंकि स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस नहीं है, सिर्फ मटेरियल प्रॉब्लम सॉल्यूशन, मटेरियल प्रॉब्लम की मटेरियल सॉल्यूशन के पीछे घूम रहे हैं. इसकी वजह से क्या होता है कि हम सिर्फ मटेरियल लेवल पे ही रहते हैं. हमें स्पिरिचुअल लेवल पे आना पड़ेगा. और जब हम स्पिरिचुअल लेवल पे आएंगे तो हमारी मटेरियल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगे. जैसे यहाँ पे बताया गया है कि कोई व्यक्ति है, वो बहुत रिच है, बहुत उसके पास सब कुछ है, ऑपुलेंस, राजा है वो कहीं का. लेकिन वो तब तक है जब तक उसके कर्म ने उसे वहां रखा हुआ है. जैसे ही उसके कर्मों का काउंट खत्म हुआ, वो गिर जाएगा. जैसे एग्जांपल आप देखो, अभी कितने सारे हैं. ये इराक में जब वॉर हुई थी अभी, सद्दाम हुसैन अच्छा खासा बड़ा, सद्दाम हुसैन जो था, इतना बड़ा उसका एम्पायर था, इतना सारा उसका पैसा था, इतने पैलेस थे, सब कुछ था. तो सब कुछ होने के बाद भी सद्दाम हुसैन के पास जो है, जब उसके पायस एक्टिविटीज के काउंट खत्म हो गए, तो वो भटक रहा था जंगल नीचे, कहीं पता नहीं कहाँ अंडरग्राउंड चला गया था, अमेरिका से बचते बचते, और कई महीनों पता नहीं कहाँ रह रहा था, क्या खा रहा था, कुछ नहीं. एक गुफा में कहीं में पड़ा हुआ था, वहीं पे बाथरूम भी वहीं जा रहा था, रह भी वहीं रहा था, खा भी कुछ नहीं रहा. तो ये स्थिति हो जाती है. जैसे ही हमारा अकाउंट बैलेंस खत्म हो जाता है कर्म का, पॉजिटिव कर्म का, तब हम गिर जाते हैं. लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ को ले लें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं. स्पिरिचुअल लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ज्यादा एलिवेट हो जाता है इंसान. तो इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ, भगवत गीता की जो टीचिंग है उसको सीरियसली ले लेते हैं हम, तो हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है फॉर एवर. अगर भगवत गीता की टीचिंग्स को कोई फॉलो करता है तो उसको दोबारा से लोअर स्पीशी, लोअर बर्थ में नहीं जाना, उसको पाप करने की जरूरत नहीं है.
पाप करने का काउंट उसको बढ़ाना नहीं है, तो ये उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। तो अर्जुन जो था उसको ये समझ में आ गया था कि भाई मेरी स्थिति जो है उसको चेंज करने के लिए मुझे कृष्णा की इंस्ट्रक्शंस चाहिए, इसलिए उसने पूरी तरह से कृष्णा के ऊपर समर्पित हुआ। अब अगली बारी नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे संजय ने क्या बोला और फिर आगे डिस्कस करेंगे कृष्णा ने क्या बोला। ठीक है, कोई क्वेश्चन कमेंट या कोई पॉइंट? क्वेश्चन कोई भी आज के टॉपिक में से पूछ सकते हो आप, या पिछले टॉपिक्स में से पूछ सकते हो जो हमने कवर किए हैं। यस सुभाष हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु। हरे कृष्णा, बताइए। My query revolves around how to find such a spiritual guru. Now, we defined that he should be Krishna conscious, but how do you know he is Krishna conscious? तो ये बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमने बात तो की कि भाई उसको गुरु ऐसा होना चाहिए, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है, जिसको कृष्ण तत्व का ज्ञान हो वही गुरु हो सकता है। तो हमें कैसे पता लगेगा? इसका मतलब है हमारे को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए भगवत गीता की। जब तक हमें बेसिक नॉलेज नहीं होगी तब तक हम पता कैसे चलेगा हमारे को कौन जेन्युइन है कौन नहीं है जेन्युइन? भाई हीरे की वैल्यू तो जोहार ही जानता है ना। जब आप ही को नहीं पता कैसा होता है हीरे, तो फिर आप कैसे पता कर सकते हो? तो इसलिए भगवत गीता पढ़नी बहुत जरूरी है, और जितनी सीरियसली जितनी जल्दी पढ़ेंगे हम उतना अच्छा है हमारी लाइफ के लिए। जितना हम पोस्टपोन करते जाएंगे उतना मुश्किल हो जाएगा। तो भगवत गीता में आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले उसमें और क्लियर होगा टेक्स्ट में कि क्या क्या क्वालिटीज है। पूरे सेक्शन है भागवतम में, तो भगवत गीता भागवतम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है सुभाष प्रभु, डज मेक सेंस? तथास्तु प्रभु। थैंक यू। ओके, और कौन क्वेश्चन पूछेगा, या कोई कमेंट हो या कोई रियलाइजेशन, कुछ आपने पिछले दिनों पढ़ा है आपको अच्छा इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा, आप शेयर करना चाहते हो? एनीवन? ओके ठीक है, तो फिर हम एंड करेंगे। अच्छा, अदिति सेइंग समथिंग? I wanted to know more about Padma Purana. हाँ, पद्म And पुराण इज अ Chaitanya पुराण है, एक बुक है, Charitamrita. बहुत प्रोफाउंड पुराण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत बड़ी भी है। तो उसमें से बड़े सारे आपको कोट्स मिलेंगे, प्रभुपाद ने कोट किए हैं यहाँ पे भगवत गीता में। तो आने वाले दिनों में हम और भी देखेंगे उसके बारे में। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? Okay, okay. और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, फिर हम एंड करते हैं। और कल के लिए भी मैं एक दो वीडियोस और भी अपलोड कर दूंगा आने वाले श्लोकों की, क्योंकि अगले 2-3 दिन में मेरे लिए बिजी होंगे। फिर मैं कोशिश करता हूँ नेक्स्ट वीकेंड कनेक्ट करेंगे अब हम, और या फ्राइडे आई विल सी, या तो फ्राइडे को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, या फिर सैटरडे संडे, आई विल अपडेट। और उससे पहले मैं वीडियोस अपलोड कर लूँगा, तो 2-3 श्लोक आगे के हम और कवर कर लेंगे, फिर वील गेट टुगेदर। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, वील एंड इट हियर। भगवत गीता की जय।